Hello, I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which film, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. एक मैगजीन कवर के लॉन्च पर कैसे सामने आई लीला दीपिका की अपने राम से दूर जाने की चिंता दिखाएंगे न्यूज ब्रेकर्स में। द बैचलर इन इंडिया के ग्रैंड फिनाले पर मल्लिका शेरावत ने 2 फिनाले कंटेस्टेंट्स के साथ भी एक सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नच बलिए के स्टेज पर कंटेस्टेंट्स और जजेस की मस्ती और शिल्पा शेट्टी की डांस परफॉर्मेंस। हॉट फैक्टर में दिखाएंगे एक मैगजीन के लिए बॉलीवुड की यूथ ब्रिगेड का लेटेस्ट फोटोशूट और क्रिश 3 की बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेस की खुशी को मीडिया के साथ शेयर किया क्रिश के काल विवेक ओबरॉय ने। The release of the film is really the end, you know. When you finish shooting for a film, you still have कि अच्छा चलो promotion भी होगा, you know, you'll still keep meeting everyone and you're in some way still connected to the film. But on that Friday, then it's gone. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। लेकिन किससे दूर होने, किससे ना मिल पाने का डर सता रहा है दीपिका को। You've spent so much time making a movie and the release of the film is really the end, you know. When you finish shooting for a film, you still have कि अच्छा चलो promotion भी होगा, you know, you'll still keep meeting everyone and you're in some way still connected to the film. But on that Friday, then it's gone, you know, it's over. Then you have to, it's just out of your system. कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। हालांकि इस जोड़ी ने एक बार फिर साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। I also hope that we get to do some, you know, some other work soon. For me, it's been a most wonderful experience working with her. I would love to collaborate with her again. लेकिन कौन जाने कब रणवीर और दीपिका फिर एक साथ फिल्म करेंगे। कौन इन्हें एक साथ फिल्म में लेगा और लेगा भी कि नहीं। शायद इन्हीं सवालों में उलझी हुई है दीपिका और वो अपने राम से अलग नहीं होना चाहती। You know, he's exactly the way he is. He's so passionate about his work and he's all there in terms of energy, his presence. He's happy to help you with your lines, you know, keep reading the scene. And it's been wonderful working with him. I think he's one of the finest actors of our generation. देखा आपने, दीपिका अब रणवीर की तारीफें करते नहीं थकती। You know, right from his first film, we all thought that he was a boy from Delhi. Little did we know that he's a Bandra boy. You know, so I think that just shows how versatile he is, and you know, I think he has great potential. वो बात अलग है कि मीडिया के सामने वो काफी स्मार्टली संभल कर बातें करती हैं। Ranveer Singh recently stated that he makes the best pair with you. Do you also feel the same way? Yeah, why not? But having said that, I just realized the other day that I've had great chemistry with 3 other people as well. I've had it with Ranveer, I've had it with Saif, and I've had it with Shah Rukh. So I think that's really a classic example of chemistry lies in the script. It lies in the dialogue. It lies in the way the characters are written, and you know, I think it really depends not just on, yes, a large part of it is your comfort level with your co-star. Well, इस केमिस्ट्री की रेसिपी स्क्रिप्ट में है या फिर रिलेशनशिप में, ये तो दीपिका ही बेहतर जाने। You know what I'm saying? So I think it has to be a little bit of both. लेकिन हम आपको बता दें कि दीपिका का ये अंदाज सामने आया रिसेंटली हुए एक मैगजीन के कवर अनवीलिंग पर। और इसी कवर पेज लॉन्च पर मीडिया इंटरैक्शन के दौरान दीपिका ने खुलकर बात की अपने लेटेस्ट र्यूमर्स पर भी। कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज आई थी कि आप और आपके को-स्टार रणवीर सिंह बेशरम के बारे में कुछ कमेंट पास कर रहे थे, तो ऐसे रूमर्स को आप कैसे लेते हो? This I found very entertaining myself. It's clearly a figment of somebody's imagination. We were sitting next to a coconut tree, so I don't know. I have no idea who has heard or what has heard, or I was in Goa shooting for a movie, so yeah. But have you seen I haven't even seen the movie. रामलीला को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं, डांस को बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन एक रूमर भी आ रहा है उसके साथ कि
जो नगाड़ा सॉन्ग है उसमें आपने डांस किया जब कोई डुप्लीकेट या किसी और को Who is spreading these rumors? I want to know. You want to see the soles of my feet? How badly the skin has come off? I've worked very hard, okay? Don't take away the credit. वेल इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दीपिका ट्रिकी सिचुएशंस को कैंडिडली हैंडल करने में अब माहिर हो गई हैं। पहले एक्ट्रेस बनेंगे प्रॉपर शेयर करेंगे अगर फिल्म में हिट हो रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे I'm not too comfortable talking about it. I think these are not things that we discuss. You know, I don't ask you how much salary you get. So I think it's a little irrelevant. It doesn't matter. How much salary do you get? Say na. Please. My salary, I'm interested in yours. No, but I'm interested in yours. वैसे जाते जाते दीपिका ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी शेयर की। Before Cocktail, you working again with Ho Main Rajaniya. So how is the film? Is the film in the progress or it's going to start in the near future? And you working It's done. with Kapoor. It's finished. I finished shooting for it, yeah. It's called Finding Fanny. It's an English film set in Goa, and I just came back 2 days ago. It's already done. Now we're doing Happy New Year with Farah and Shah Rukh both. So कैसा experience रहा? It's a lot of fun. I mean, I'm surrounded by mad people. Farah, Shah Rukh, Abhishek, Boman, Sonu Smooth, as we call him, and Vivan. You know, so it's a lot of fun. यानी काफी कुछ है इस साल दीपिका की फिल्म की टीम में। तो हम भी यही विश करते हैं कि 15 नवंबर को रामलीला की रिलीज से लेकर आने वाला 2014 भी दीपिका के लिए 2013 की ही तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे और राम और लीला की ये जोड़ी फिर एक साथ किसी फिल्म में नजर आए। You know, honestly, the year's been so fantastic. I don't want to ask. I just want to thank. It's been a wonderful year. I don't want the year to end. But it's been great, and all I can hope for is, that 2014 and going forward, it will be as special as this year was for me. नगाड़ संग ढोल बाजे तेरा सौदाई मन के शहनाई कानों में शिल्पा शेट्टी के इस डांस के अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं नच बलिए के सेट्स पर हुई और भी ढेर सारी मस्ती। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जिनमें नजर आ रहा है शो के इन जजेस के साथ शो के कंटेस्टेंट्स का फन साइड। सो लेट्स टेक अ लुक। जाने किसे सजा दे दे। We have a little thing for you guys. Sajid, specially for you. Ay, you तक रही है। Muna, you get full marks for being a sport. I also prepared something for you, sir. Okay. Terence, Yes. मैं आपका न्यू लुक देखकर आश्चर्यचकित हो गई। Yeah, just chuck it. Just chuck it. चकित हो गई। और शिल्पा जी के लिए अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो हो नहीं सकता। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये तो तुम भी सुन लो देव, इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी मैं मेरी एक विश है छोटी सी, मैं आपके साथ 2 स्टेप करना चाहता हूँ डांस के। ओ हेलो, क्या
बहन जी सिर्फ 2 स्टेप करना, उससे ज्यादा मत करना। मैं नहीं, इनफैक्ट हम करना चाहते हैं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है। द बैचलरेट इंडिया मल्लिका शेरावत की ये डांस परफॉर्मेंस नजर आई उनके इस शो के ग्रैंड फिनाले इवेंट पर। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना उसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के। जहां मल्लिका ने अपने शो के दोनों फाइनल कंटेस्टेंट्स के साथ दी ये काफी कोजी डांस परफॉर्मेंस। सो लेट्स टेक अ लुक। सदियों से तरसी है जैसे जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मुझे बनाया तेरे जैसे किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, तो हम सफर है फिर क्यों फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। और अब वक्त है हॉट फैक्टर का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सारे यंग एक्टर्स के कुछ चर्पी एंड रेस्टलेस बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ फोटो शूट डन फॉर अ मैगजीन। सो लेट्स टेक अ लुक। जो 2 उंगलियां हैं इनमें सब काफ़ी पावर आ गया है, तो इससे जैसे अभी जो आपके कैमरा हैं ये सब कैमरास को हम लोग मूव कर सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लग गया ये। काल के लिए इतनी सीटियां मार रही है, तो काल भी जो है अपने ऑडियंस के लिए एक सीटी मार देते हैं।
इतनी खुशी, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी ऑडियंस का, जिस तरह से मुझे काल के रूप में प्यार मिला है। इसके डायलॉग्स ऑलरेडी लोग, ऑडियंस ऑलरेडी रिपीट करने लग गई है, तो बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं आई लाइक इट, जैसे एक ज़माने में बोलते थे मोगैम्बो खुश हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे एज एन एक्टर बहुत खुशी मिलती है। वैसे ना सिर्फ विवेक बल्कि क्रिश 3 के पूरे पैकेज को ही ऑडियंस ने काफी पसंद किया है, जिसका जायजा लेने विवेक पहुंचे थे मुंबई के चंदन सिनेमा में। ऋतिक के बारे में एक खासियत है कि वो हमेशा दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो कल उनका फोन आया मुझे कि पिक्चर थिएटर में देखी। मैंने कहा हाँ, वो पीवीआर वगैरह गया था। नहीं सिंगल स्क्रीन में देखी। मैंने कहा नहीं, सिंगल स्क्रीन में तो नहीं देखी। मैं मराठा मंदिर में हूँ और लोग काल की एंट्री पे सीटियाँ मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे हर डायलॉग पे, तुम्हें देखना चाहिए। तो मैंने कहा अब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चंदन थिएटर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ ज्वाइन करो। तो मैं पहुँचा चंदन थिएटर ऋतिक के साथ में, और जिस तरह से हम लोग छुप कर सीढ़ियों पर खड़े थे अंधेरे में और फिल्म देख रहे थे, और जिस तरह से मतलब थिएटर कच भरा हुआ था, 1500 लगभग की आबादी होगी अंदर थिएटर में, और हर डायलॉग पे कभी काल के, कभी क्रिश के, कभी काया के, सीटियों पे सीटियाँ, तालियों पे तालियाँ जो लग रही थी, इतना अच्छा लगा। और बाहर आकर भी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, जाने नहीं दिया हमें, छोड़ा नहीं, हमें पकड़ लिया दोनों को। और जनता के इन रिएक्शन से अलग विवेक की वाइफ प्रियंका ने उनके इस नेगेटिव रोल पर किस तरह का रिएक्शन दिया, ये भी बताया विवेक ने। उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये जो मेरा प्यारा सा स्वीट सा मुस्कुराता हुआ हस्बैंड जो हमेशा मतलब दिल का इतना सॉफ्ट है, वो इतना पर्दे पर इवल कैसे बन गया, ये कैसे बदलाव लाया? तो मैंने कहा यही तो एक्टिंग है। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया मुझसे कि यार 2-2.5 महीने पहले ग्रैंड मस्ती रिलीज होकर 112 करोड़ का बिजनेस किया आपने, पहली सेंचुरी वहाँ पे लगाई, और वहाँ पे आप लोगों को हंसा रहे थे, अब उन्हीं लोगों को आप थिएटर में बुलाकर डरा रहे हो, ये क्या माजरा है? आई थिंक कि एज एन एक्टर इसी चीज़ में बहुत मज़ा आता है कि अलग अलग आप रोल्स परफॉर्म करें, वर्सेटिलिटी दिखाएं अपनी, एंड एज एन एक्टर आप दोनों चीज़ों को इतनी बखूबी निभाएं कि लोग दोनों को इतना एंजॉय करें, और दोनों ही फिल्में आपकी अलग, कम्प्लीटली अलग जो फिल्में हैं, 100 करोड़ क्रॉस कर गई। वेल, इतनी सक्सेस के बाद अब तो पार्टी बनती ही है, जिसके लिए विवेक भी तैयार है। सबसे अहम बात, मेरे घर मेरा खुद का छोटा सा डायपर पहनता हुआ सुपर हीरो आया है, जो मैं सेलिब्रेट करना चाहूँगा इस साल। तो अच्छी पार्टी रखूंगा और सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। So till then, here's wishing Vivek good luck and some more power. सिंगर्स अनूप जलोटा, तलत अजीज, पंकज उधास और सुमित टप्पू ने एक साथ मिलकर बनाई है एक गजल एल्बम डेस्टिनी, जिसको लॉन्च करने पहुंचे बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। इस एल्बम के सिंगर से अमिताभ बच्चन काफी इम्प्रेस नजर आए। जब आपका हमने रिकॉर्ड सुना और आपने मुझे पहले भेजा भी था उसे मैंने सुना, तो बड़ा सुकून मिलता है। और अपने जितने भी यहाँ दर्शक आए हैं और जितने भी मेहमान आए, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि उसे अवश्य सुने इत्मीनान से। रात की तन्हाई में कभी आप सुनेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी आपको। वैसे बात करें सिंगिंग की, तो बिग बी ने भी अपनी कई फिल्मों में हिट सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन अमिताभ इन सॉन्ग्स की सक्सेस का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहते। मैं तो इतना अच्छा नहीं गा सकता हूँ, ना मैंने कभी सीखा है, बस ऐसे ही कुछ लोग आजकल कह देते हैं गाने को, और बहुत अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं आजकल कि बेसुरे को सुर में डाल देते हैं। तो उन्हीं यंत्रों का उपयोग करके कई ऐसे गाने हमने गा दिए हैं। अब ये तो बच्चन साहब का बड़प्पन है, वरना सब जानते हैं कि वो सिंगिंग भी कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं आजकल कि बेसुरे को सुर में डाल देते हैं। तो उन्हीं यंत्रों का उपयोग करके कई ऐसे गाने हमने गा दिए हैं। वेल, तो ये रहे अमिताभ बच्चन, जो रिसेंटली बने एक एल्बम डेस्टिनी के लॉन्च पर गेस्ट ऑफ ऑनर।
आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके जिंग स्पेस फीडबैक to 57575 और हमें ईमेल कर सकते हैं at zing@znetwork.com. That's all for now, but for more Bollywood updates, stay tuned with us.